Students, in this video we are going to discuss numerical problem 18 from chapter 6, DC circuits and measurements. The problem says that we have been given with a circuit in which have got this 10 ohm and 100 ohm and 2 and R ohm resistance connected as shown in the circuit, and we are required to find out the current in 10 ohm and 100 ohm resistor. Now, before starting with the circuit analysis, one must know where are the nodes. So you can see if I move from here, this point will be a node, because here I can have three different current carrying path that meets, and then the other node happens to be this one. So let me mark these two nodes as 1 and 2. Okay, now across these two nodes, these two are the branches. This is branch 1, B1 I am writing down, and this is my branch 2. Now across the same nodes, students, across the same nodes, branches are in parallel. So you can see across the nodes 1 and 2, branches B1 and B2 are parallel. So what we know that across the same pair of nodes, branches are in parallel. So this is what we know we had studied in our theory classes, that across the same pair of nodes the branches are in parallel. Those students who still do not know what are nodes or junction, what are branches, I will recommend them to go and watch my earlier video which was discussing these terminology. Now students, since across the nodes, which nodes we are talking across? We are talking about nodes 1 and 2. So across the nodes 1 and 2, branches B1 and B2, branches B1 and B2 are in parallel. So this is the outcome of this one. Knowing this fact that across the same pair of nodes the branches are in parallel. So you can see over here the branches B1 and B2 are connected across the nodes 1 and 2, hence they are in parallel. Now second thing that you should also be aware of, this is the point 1 and this is the point 2. If the voltage across the nodes B, V, then all the branches connected across the same pair of node will also have the same voltage. तो बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा हूं कि अगर किसी एक पेयर ऑफ नोड्स के अक्रॉस कुछ वोल्टेज कनेक्टेड है, तो यहाँ अगर 1 और 2 के अक्रॉस वोल्टेज कितना कनेक्टेड है तुम देख सकते हो, 100 वोल्ट कनेक्टेड है. सो इफ द वोल्टेज अक्रॉस द पेयर ऑफ नोड्स बी V, then all the branches would have the same voltage. तो बच्चों यहाँ पर ये ब्रांच B1 और B2 के अक्रॉस भी वोल्टेज 100 वोल्ट रहेगा. सो मैं आराम से यहाँ का वोल्टेज बता सकता हूँ अब, क्योंकि वो भी 1 और 2 के अक्रॉस कनेक्टेड है. तो इस पेयर के अक्रॉस 100 वोल्ट, सॉरी इस पेयर ऑफ वोल्टेज नोड्स के अक्रॉस 100 वोल्ट वोल्टेज, और यहाँ पर भी इस पेयर के अक्रॉस भी 100 वोल्ट जो कि दिया हुआ है. अब टोटल वोल्टेज जो आपने अप्लाई किया था बच्चों, वो 120 वोल्ट अप्लाई किया था. यहां पर 100 वोल्ट आ गया, यहां पर 100 वोल्ट आ गया. तो इस पेयर ऑफ नोड्स के क्रॉस 100 वोल्ट है, तो बचा हुआ जितना भी वोल्टेज है वो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, जो कि 20 वोल्ट हो जाएगा. तो अब मुझे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पता है. नाउ यू नो यूजिंग ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या कहता था कि V अपॉन I का रेशियो is always equal to the resistance of the wire or the conductor, or V is equals to IR.
मैं हमेशा इसको याद करने का रिकमेंडेशन देता हूं इन द फॉर्म ऑफ V. So V is equals to IR. So I know the voltage at this point, that is 20 volt, and the resistance happens to be 10 ohm. Therefore voltage happens to be 20 volt and the resistance happens to be 10 ohm. Therefore current will be, I will be equals to V by R, which eventually will be 20 upon the resistance happens to be 10. So the current happens to be 2 ampere. तो बच्चों इस तार में या इस रेजिस्टेंस में जो करंट जा रहा है वो कितने एम्पियर का जा रहा है? 2 एम्पियर का करंट इस वाले तार से पास कर रहा है. अब देखो यहाँ पे जब तुम्हारा करंट आता है तो ये पॉइंट 1 एक नोड है. नोड पे करंट रीडिस्ट्रीब्यूट होता है या करंट डिवाइड होता है. तो चलो अब देखते हैं इस पॉइंट पे करंट कैसे डिवाइड होगा. ना यहां से जो करंट आगे बढ़ा 2 एम्पियर का बढ़ा. अब बच्चों इस वाले ब्रांच में आप देख रहे हो इस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज कितनी लगी हुई? 100 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम. तो ब्रांच B1 का करंट क्या हो जाएगा? फाइंडिंग करंट इन ब्रांच B1. तो करंट इसको मैं कह देता हूं, इस ब्रांच में जो करंट जा रहा है मुझे मालूम नहीं, मैं अभी उसको कह देता हूं I2. तो ये जो करंट जा रहा है I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगेन V बाई R. V क्या है? जो भी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज है वो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 100 वोल्ट. और जो भी इस ब्रांच का रेजिस्टेंस, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस बच्चों कितना है? वो है 100 ओम. तो 100 कट गया तो यहां पे करंट I2 कितना आ गया? 1 एम्पियर. तो इस ब्रांच में जो करंट जा रही है कितनी जा रही है बच्चों? 1 एम्पियर की करंट यहां उतर रही है. अब देखो यहां से करंट आई 2 एम्पियर, 1 एम्पियर इस वाले ब्रांच में चलेगी तो बची हुई करंट आगे बढ़ जाएगी. तो यहां पे जो करंट जाएगी वो कितनी हो जाएगी? यहां से चल रही थी I करंट, यही तो I की वैल्यू हम लोगों ने 2 एम्पियर निकाली थी, और इधर कितनी चली गई बच्चों? I2. सो इस ब्रांच में जो करंट जा रही है इसको मैं अगर I1 लिख दूं तो I1 विल बी इक्वल्स टू I माइनस I2. तो 2 एम्पियर इधर से एंट्री करी, 1 एम्पियर इधर चली गई, तो यहां पे जो करंट गई वो कितनी आ गई बच्चों? ये आ गई तुम्हारे पास 1 एम्पियर. अब इस वाले रेजिस्टेंस में भी तुम्हें करंट पता चल गया कितना करंट यहां से ऊपर से नीचे आ रहा है? 1 एम्पियर का करंट नीचे आ रहा है. तो करंट तुम्हें पता है, वोल्टेज तुम्हें पता है, तो रेजिस्टेंस तुम निकाल सकते हो. रेजिस्टेंस क्या था? फाइंडिंग रेजिस्टेंस R. तो रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था? V अपॉन I. अब इस ब्रांच में B2 ब्रांच में वोल्टेज कितना है? 100 वोल्ट का है, और करंट कितना आ रहा है इस ब्रांच में? वो आ रहा है 1 एम्पियर का. तो रेजिस्टेंस बच्चों कितना हो गया इस जगह पे? 100 ओम का रेजिस्टेंस हो गया. एक्सपेक्टिंग कि आपको मेरी सारी बातें यहां पर समझ में आ गई होंगी. दिस इज अ सिंपल बट एक अच्छा आई ओपनिंग प्रॉब्लम है न्यूटन फिजिक्स से. तो बच्चों इसको जरूर ट्राई करिएगा. थैंक यू सो मच. Friends, thank you for watching. Don't forget to give a like or comment. अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू द सेम. Don't forget to hit the bell icon so that whenever a new video is loaded, you get the notification. Take care, and we will meet back again with a new video and a new solution. Thank you, friends.